Hello guys. So as discussed, today we'll be starting with the decision making section of ZAT. तो अभी CAT का रिजल्ट आ गया है और some of you will be very eager to give ZAT का एग्जाम कि मतलब हाँ अच्छे से देना है कि हाँ तशारुदात नहीं कर पाए स्कोर. कुछ के साथ ये होगा कि हाँ बहुत अच्छा आ गया है चलो दे देते हैं. रिगार्डलेस किसी भी सिचुएशन में हो आई वुड सजेस्ट पेपर अच्छे से दो. इफ यू टॉक अबाउट द पेपर ZAT का पेपर देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस फ्रॉम CAT क्योंकि कैट में टेक्निकली यू आर गिविंग 3 एग्जाम्स बैक टू बैक 40 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट्स 3 सेक्शंस 3 पेपर्स बैक टू बैक. While if you talk about that, the game is entirely different. You have a hell lot of time. I mean 175 minutes excluding the GK and the essay writing part. And again, both of them are not even counted, so let's skip that. So we have 3 sections: VLR and then decision making and then quant and DI. So you have 175 ample minutes. The strategy should be very similar to CAT. As far as I recommend, you should start with verbal and then you can go to easy question of quant or DI wala part and then you can go to decision making and then again remaining quant. Because if you do decision making and verbal in continuation, it can lead to a little fatigue because you have to read a lot. It's all about reading every time. So you have to put quant cushion in between both the sections. So let's say if you're starting, I would suggest you should start from verbal only because that is naturally how your mind has been trained while you have been preparing for CAT. तो दिमाग वैसे ही ट्रेन हो चुका है अपना. So you should start from this verbal section, then you should move on to some easy questions of quant. You can say your first 50 minutes verbal, then around 30 minutes some part of quant or DI. Then you can again go to decision making for next 50 minutes and then the remaining time can be devoted to quant again. Now specifically if I talk about decision making, so every year we have observed this कि whenever we go for the exam and then we solve and then the actual response sheet whatever you have given in your exam, when it comes out, when we get to have the question paper, so every institute, every coaching institute throughout the country almost have disparities in decision making answers. Why? क्योंकि obvious है, there's no specific science to it. There can be multiple answers based on your subjectivity, your perception. लास्ट में जब दैट खुद रिलीज करता है, when they release themselves, then again सब कुछ पूरा गेम पलट जाता है. तो अगर कोई भी आपको बोल रहा है, मतलब इंक्लूडिंग मी, अगर ये बोलने लग जाऊं कि नहीं दिस इज अ श्योर शॉट स्ट्रेटजी टू क्रैक डिसीजन मेकिंग एनी हाउ, दैट इज नॉट गोना हैपन. वो कभी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगेन ये परसेप्शन बेस्ड है बहुत ज्यादा. हाँ, कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनके बारे में आज बात भी करेंगे हम और 2-3 क्वेश्चन साथ में सेट सॉल्व भी करेंगे. तो बेसिकली उन जो बेसिक रूल्स हैं उनको समझना इज इंपॉर्टेंट कि हाँ हम ये बता सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में क्या नहीं करना है. सो बेसिकली द सेशन टुडे विल बी अबाउट व्हाट नॉट टू डू एंड जो आप कर रहे हैं उसके पीछे बेसिक एक मतलब क्या एक प्रोसेस या क्या एक साइंस हम लोग लेके चल रहे हैं. ठीक है. सो वी वोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज डीएम और व्हाट वी कॉल इट डिसीजन मेकिंग. तो पहले क्वेश्चन का टाइप कैसा आता है सभी ने देखा होगा पहले भी. तो बहुत सिंपल सी चीज है कि you'll be given a set, I mean some information, a case basically आप बोल सकते हो. You'll be given a case and you have to solve a problem or basically you have to find the best possible course of action. Now when I say course of action, that actually means the way you're going to deal with it, right? तो अभी we'll talk about how to solve decision making in 2 ways. One thing we'll be talking about question को कैसे डील करना है, and then we'll talk about logic. ठीक है. तो वन बाय वन. सो when I say question कैसे डील करना है, तो सबसे पहले समझने की जरूरत क्या है. there are basically 3 major types of questions sets या फिर cases. तो एक टाइप होता है आपका एकदम लॉजिकल केस. ठीक है. then we have cases based on numbers या फिर फाइनेंशियल डेटा. Then we have cases which are based on ethics, and then we have cases based on managerial data और managerial mindset, right? तो अभी यहाँ पे देखना हमको ये है कि ये जो 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं,
इसमें अगर आपको चूज करना हो, पहली बात तो हाँ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा चूजी होना इज इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू, ये इसको एकदम लॉ ऑफ एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लेते हुए, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे तो आपको लग रहा होगा मेरा सही ही हो रहा है, या तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी, या लगेगा सही ही हो रहा है। तो लोग गलती क्या करते हैं, अक्सर 22 के 22 या 18 अटेम्प्ट ऐसे करके चले आते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू आर एक्चुअली दैट लेवल कॉन्फिडेंट, बट आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा इसमें भी यू हैव टू बी सिलेक्टिव व्हाइल चूजिंग। तो चूज करने के लिए सबसे पहले जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट गो फॉर न्यूमेरिकल और फाइनेंशियल डेटा। व्हाई? क्योंकि जहां पे नंबर्स होंगे, जहां पे कुछ ऐसा डेटा होगा जहां पे नंबर्स इंक्लूडेड है, वहां पे मोर और लेस सम कैलकुलेशन विल बी नीडेड, और जो भी आपको डिसीजन लेना है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन नंबर या फिर कोई भी एक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे परसेप्शन का प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ज्यादातर होगा कि तुमको दिख रहा है कि हाँ कोई चीज थ्रेशोल्ड पार कर रही है या नहीं कर रही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू न्यूमेरिकल डेटा या नंबर्स वाले से, फाइनेंशियल डेटा वाला सेट। देन यू कैन गो फॉर लॉजिकल सेट, क्योंकि लॉजिक मोर और लेस टॉक्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। तो लॉजिकल वाले सेट को मिलना चाहिए अपने को सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी पे मैनेजरियल को मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसमें भी अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजरियल प्रॉब्लम, it more or less is around some moral of an organization or the company या जिसके बारे में बात चल रही है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एथिक्स, तो एथिक्स इज वेरी पर्सनल इन नेचर। मतलब एथिक्स का मतलब होता है कि मेरा एथिक्स कैन बी डिफरेंट, योर एथिक्स कैन बी डिफरेंट, बट सिंस वी बोथ बिलोंग टू द सेम सोसाइटी सो आवर मॉरल्स आर सेम। ठीक है, तो ये थोड़ा बिगर पिक्चर है, इसमें सब्जेक्टिविटी होने का चांस कम है। सबसे ज्यादा हाई चांस होता है जो एथिक्स बेस्ड होते हैं, क्योंकि वहां पे हर इंसान का पर्सनल ओपिनियन इज एवरीथिंग। ठीक है ओके नाउ, तो पहला तो क्वेश्चन सिलेक्शन के टाइम पे वी हैव टू फॉलो दिस मेथड, थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क कि आप इस ऑर्डर से उठाओगे तो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग क्वेश्चंस करेक्ट विल बी हायर। और मान लो वैसे तो टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है दैट में, बट जस्ट इन केस आपको ज्यादा टाइम नहीं है तो इट्स बेटर टू गो फॉर वो वाला सेट जहां पे आंसर सही होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, नाउ अब ये तो हमारे जो चार टाइप के या सिचुएशंस हो गए क्वेश्चंस के। नाउ सॉल्व करने का मेथड क्या है, तो भाई सबसे पहले यू हैव टू रीड एंड रीड वेरी प्रॉपरली। व्हेन आई से वेरी प्रॉपरली, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप पूरा सेट इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, ट्राई टू बी देयर इन दैट पर्सन्स शूज। सुपरफिशियल रीडिंग से प्रॉब्लम क्या आता है कि वी डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द एंटायर प्रॉब्लम। एक आध वर्ड्स हम मिस कर जाते हैं, उसकी वजह से वी मिस रीड एंड वी इंटरप्रेट इट इन सम अदर वे व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो ये नहीं करना है, रीडिंग पे बहुत ध्यान से पढ़ना है। देन यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड ऑफ कोर्स मतलब रीडिंग का मतलब ही हो गया कॉम्प्रिहेंड करते हुए पढ़ना। सो व्हेन आई से कॉम्प्रिहेंड दैट मींस आपको समझना है कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा है, what actually the problem is. Then you have to analyze। ठीक है, तो एनालिसिस का मेथड क्या होता है, we'll talk about it। then you have to analyze the situation and last में you have to go for options elimination। ठीक है, don't try to look for the best answer, always try to look for the least worst answer। ठीक है, there's a difference। लीस्ट वर्स्ट का मतलब क्या होता है, आप हर आंसर को नेगेट करने के लिए कोई कोशिश करोगे, जिसको आप सबसे कम नेगेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। द सेम स्ट्रेटजी व्हिच वी फॉलो इन आरसी, राइट। नाउ तो ये तो अपना कोर्स ऑफ एक्शन हो गया कि कैसे अपने को आगे मतलब बढ़ना है इसमें। नाउ अब बात क्या है, किसी भी क्वेश्चन को देखने के टाइम पे जो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हमें समझना है कि हमें तीन पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यूज कौन कौन सा। सबसे पहले लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज को समझना है, फिर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, एंड देन देखना है कि जो भी सॉल्यूशन हम सजेस्ट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। अब यहाँ पे इन तीनों का मतलब क्या है तो लेट्स से अभी कोई भी केस उठा लो, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ सिचुएशन कि मान लो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड टू मी इन वन ऑफ माय इंटरव्यूज, जब मैं दे रहा था अपने टाइम पे। तो द क्वेश्चन वाज कि इट्स ऑलमोस्ट 12 मिडनाइट, ड्राइविंग योर कार, एक ट्रैफिक सिग्नल आता है और ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट रेड है। नाउ यू कैन सी कि तुम्हारे दोनों तरफ से कहीं से कोई गाड़ी वाड़ी आ नहीं रही है, देयर इज नो व्हीकल अराउंड। तो बट सिग्नल रेड है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। इन सच अ सिचुएशन इफ आई आस्क यू व्हाट विल यू डू, विल यू स्टॉप और विल यू just keep on driving? You will wait for the signal to get green or you won't bother about the signal because there's no harm going to happen। अब इस केस में अगेन मतलब करेक्ट आंसर की अगर बात करोगे तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर सिर्फ इतना ही पता है तो यहाँ पे दो अलग अलग ओपिनियन एकदम सही हो सकते हैं। एक एथिक्स किसी का ये बोल सकता है कि अरे यार जब मैं किसी का नुकसान ही नहीं कर रहा हूँ, देयर इज नो अदर व्हीकल, और
कोई मुझे देख भी नहीं रहा है, तो मैं ना सोशल मैसेज गलत दे रहा हूँ, ना किसी का लॉस हो रहा है, इनफैक्ट आई एम सेविंग माई टाइम, तो मैं तो क्रॉस कर जाऊंगा, निकल जाऊंगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वट एवर इट इज, बट सोसाइटी का एक रूल है कि ऐसे फॉलो करना चाहिए। अब कोई नहीं देख रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम रूल ब्रेक करेंगे, तो आई विल वेट, जब सिग्नल वापस ग्रीन होगा तब मैं जाऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है जब इतनी सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी बताया आपको, तो इस केस में क्या है, कुछ भी लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही अपने अपने सही हैं, ठीक। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और प्रैक्टिकली दोनों पॉसिबल है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर हम देखें कि लॉजिकली क्या करना चाहिए, तो लॉजिकली ऑफ कोर्स ये भी सही है कि टाइम बचाना चाहिए, ये भी सही है कि रूल फॉलो करना चाहिए। एथिकली क्या करना चाहिए, विल एक्चुअली गिव द रीजन कि तुम कौन सा वाला चीज क्यों कर रहे हो। एंड दोनों चीज प्रैक्टिकल है, रुकना भी प्रैक्टिकल है और निकलना भी प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है फंस रहा था कहाँ पे, ये फंसेगा एथिक्स की वजह से। नाउ वन प्रोफेसर, मतलब मान लो एक जो तुम्हारा कॉपी जो जिसने करेक्ट आंसर मार्क किए हैं, मतलब जिसने ये पेपर बनाया है, वन पर्सन कैन थिंक कि नहीं यार इसमें कोई गलती नहीं है, निकल जाना चाहिए, अनदर कैन थिंक कि नहीं नहीं निकलना चाहिए। तो नाउ इट विल टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज मेकिंग द क्वेश्चन पेपर कि वो किस वाले को सही मान के चल रहा है, इफ इतनी ही इंफॉर्मेशन है तो, राइट। तो ये तीन पॉइंट ऑफ व्यूज को हमेशा ध्यान में रखना है व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ स्टेप 2, डोंट रश, आई मीन don't rush. When I say that means you have to spend sufficient time understanding the situation, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत लंबे पैसेज नहीं आते हैं, छोटा ही आता है, ठीक है। तो भागना नहीं है, धीरे धीरे चलना है, एक एक चीज समझते हुए। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू एस्टैब्लिश स्टेक होल्डर्स। So when I say established stakeholders, that means कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेट में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अब पूरे जो तुम्हारा केस था, ये चीज ध्यान देना कि जब भी तुम कोई भी सोल्यूशन दे रहे हो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी पर्सन या एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, मतलब जो भी उसमें इन्वॉल्व है, वो जिनको भी इस डिसीजन से इम्पैक्ट पड़ सकता है इन सम और द अदर केस, वो सारे क्या होंगे हमारे, वो हमारे हो गए स्टेक होल्डर्स। इन लोगों को हमें स्टैब्लिश करके चलना है, प्लस इनके साथ मतलब एक चीज का ध्यान देना है कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्टैब्लिशिंग स्टेक होल्डर्स, तो पहले तो एनालाइज करो कौन कौन स्टेक होल्डर है, एंड देन ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू सबके हिसाब से सोचने की कोशिश करनी है। ट्राई टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज डैमेजेस, विच इज द नेक्स्ट स्टेप, टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स ऑफ किसका, स्टेक होल्डर का सारे, एंड मिनिमाइज डैमेजेस, ठीक है। डैमेजेस का मतलब कि उनके अगेंस्ट में ना जाए, किसी का लॉस ना हो, कोशिश ये करनी है, ठीक है। एंड यू हैव टू एनालाइज योर सिचुएशंस very holistically. When I say holistically, that means you have to take care of everyone in every scenario, ठीक है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई टेल यू कि ये चीज कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। नाउ while eliminating या while looking for the correct answer, please totally avoid, sorry, yeah, so totally avoid personal opinions। कोई भी बहुत radical चॉइस किसी भी आंसर में चूज नहीं करना है। बहुत कोई ऐसा ऑप्शन है जो पर्सनल ओपिनियन लग रहा है किसी का, तो उस पर अवॉइड करना है जाने को, क्योंकि हमें थोड़ा सा वही ये तीनों चीज को फॉलो करना पड़ेगा, लॉजिकल, एथिकल एंड प्रैक्टिकल वाली चीज को, ठीक है। ट्राई टू लुक फॉर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देन आइडियल। नाउ दिस हैपेंस मोस्टली विद पीपल who are just अभी जो कॉलेज से जैसे निकला हुआ क्राउड है ना, इन योर 21 22 वाला एज, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है कि वी डोंट सी थिंग्स वेरी मैच्योरली एट टाइम्स। एंड व्हाइल पीपल हु हैव बीन वर्किंग अराउंड 2-3 इयर्स, इनका वर्क एक्स से थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं, वहां पे उनको ये चीज डिफरेंस समझ में आती है कि हर चीज आइडियलिज्म में नहीं सही है, हमें देखना है कि हो क्या सकता है। तो यू डोंट हैव टू गो फॉर आइडियल आंसर्स, गो फॉर प्रैक्टिकल आंसर व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड एज वेल, और जो सारी चीजों को फॉलो करते हुए चल रहे हो, ठीक है। एनी हाउ प्लीज डोंट बी अनएथिकल, कुछ भी हो जाए, इसको एकदम अवॉइड करना है, ठीक है। और देन लास्ट थिंग, ऑलवेज क्रॉस चेक, ठीक है। तो क्रॉस चेक करने का मतलब क्या हो गया, जो आंसर आपने फाइनली मार्क कर दिया है या सब एलिमिनेट करने के बाद, लास्ट में एक बार यार जरूर से देख लेना कि अच्छा ठीक है जो मैंने कर दिया, अब मैं दोबारा इसको अगर पढ़ रहा हूँ तो इज इट मेकिंग सेंस टू मी, ठीक है। मैंने इसे दोबारा से पढ़ रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि थोड़ी देर बाद आके पढ़ना है, जब सॉल्व कर रहे हो उसके टाइम पे ही,
ठीक, जब तुमने पूरा एक सेट में मान लो 3 क्वेश्चन है, तीनों कर लिए, तीनों को उसके बाद फिर एक एक बार देख लेना। आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 5 मिनट्स टू सॉल्व अ सेट, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतने टाइम में आराम से आप अगर एक सेट निकालते हो तो 50 मिनट में 10, यानी कि ऑलमोस्ट आप पूरा, इतने तो आते भी नहीं है खैर, तो ऑलमोस्ट आप पूरा पूरा पेपर, पूरा सेक्शन एक बार देख तो सकते हो, और क्या अटेम्प्ट करना क्या नहीं करना ये आपका चॉइस, आप ले सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द some sets. So this one is from ZAT 2023, लास्ट ईयर का ही है, एंड आई गेस सबने ही इसको सॉल्व किया होगा, अब तक देख भी चुके होंगे, इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह भी मिल गए होंगे, सबके पास होगा, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू गिव इट सम टाइम। तो एक बार आप पढ़ लो इसको, एंड वीडियो पॉज करके यू कैन रीड, एंड देन विल गो डायरेक्टली टुवर्ड्स द डिस्कशन पार्ट। ऑलराइट, तो आई होप आपने भी पॉज करके इसको पढ़ लिया। नाउ हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार सेट को जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जो सबको दिख ही रहा है। सो देयर इज अ भारत बिजनेस स्कूल व्हिच इज अ प्रीमियर बिजनेस स्कूल एंड नोन फॉर इट्स रिनाउंड क्वालिटी एजुकेशन, राइट? ओके, और फैकल्टी, चलो तो यहाँ पे दे क्या रखा है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन शुरू होते हैं, तो बोल क्या रहा है कि इट्स फैकल्टी नोन फॉर द डोमेन एरिया एक्सपर्टीज एंड एक्सीलेंस इन टीचिंग कॉम्पिटेड विद ईच अदर टू फॉर अ स्टूडेंट बेटर फीडबैक। So the faculty members who are expert in their own domains and they are very excellent in teaching, they are competing with each other for better student feedback. तो यहाँ दो स्टेक होल्डर्स आगे कौन कौन है, स्टूडेंट्स भी हैं और फैकल्टी भी है। Now of late the institute of finding it difficult to update course content in rapidly changing global business scenario। तो कुछ देखो सिचुएशन ऐसा है कि कोर्स कंटेंट में कुछ अपडेशंस चाहिए जो नहीं हो पा रहे हैं, और एक और प्रॉब्लम अभी फेस क्या कर रहे हैं लोग कि कुछ सीनियर फैकल्टी ओवर सम टाइम विल रिटायर रेगुलर बेसिस पे, मतलब कुछ कुछ टाइम पे होती जाएगी नियर फ्यूचर में। तो अब कॉलेज ने डिसाइड किया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में ये लोग कुछ यंग फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ व्हेन द डीन एकेडमिक्स scanned the applications, she found 3 distinct types of aspirants, जो 3 अलग अलग कैटेगरी के एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो A is those who are very good teachers, competent of teaching the courses, जो अभी existing faculty members पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ा सकते हैं। B, वो कैंडिडेट्स हैं who are average teachers but they are competent at creating and teaching new courses that would complement existing courses taught by the current faculty। तो more or less ये थोड़े helping hand जैसे हो सकते हैं, ठीक है। C, ये वो कैंडिडेट्स हु आर नॉट सो गुड टीचर्स विलिंग टू टीच एनी कोर्स, मतलब वो सिचुएशन की कुछ भी दे दो कर लेंगे बट क्वालिटी का कोई गारंटी बहुत ज्यादा नहीं है। Now there are 2 notes. One is saying the course is termed complementary when it covers latest content and complements existing courses offered by a department. Next क्या बोल रहा है, each department decides the suite of courses to be offered। ठीक है, चलो तो सिचुएशन बहुत सिंपल सी है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। Now if we have to understand, चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले तो। Now given the above context, which of the following options will be best recruitment decision for BBS? एक बात यहाँ पे समझना है। Now ये लाइन जो होती है ना, ये पार्ट, दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड, राइट? तो तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे और चीजें दिमाग में नहीं रखनी है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफिक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट रिक्रूटमेंट डिसीजन फॉर बीएसएस या बीबीएस, सॉरी। नाउ लेट्स गो विद द ऑप्शंस। तो बिफोर वी गो विद द ऑप्शंस, मतलब एक चीज देखते हैं, हम जब रिक्रूटमेंट डिसीजन ले रहे होंगे तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम एड्रेस करनी है। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्या थी, एक जो न्यू कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने थे वो नहीं हो पा रहे थे, दूसरा कुछ फैकल्टी रिटायर हो रही है तो उनका रिप्लेसमेंट भी धीरे धीरे चाहिए, एंड तीसरा ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत रिनाउंड कॉलेज है तो अपना क्वालिटी भी है मेंटेन करेगा। तो हमें रिक्रूटमेंट डिसीजन इस तरह से लेना है कि ये तीनों प्रॉब्लम हमारी एड्रेस हो पाए। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। तो देखो पहला ऑप्शन बोला है हायर बी टाइप कैंडिडेट्स, ये कौन से हैं, जो एवरेज टीचर्स हैं कॉम्पिटेंट एट क्रिएटिंग एंड टीचिंग न्यू कोर्सेज, ठीक, दैट वुड कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग कोर्सेज, ठीक है। तो बी को कैंडिडेट को हायर कर लो ताकि ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज कैन बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स। अब इस ऑप्शन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, इस ऑप्शन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि एक तो पहली बात कि अगर ये कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है एज एग्जिस्टिंग टीचर्स तो ये चलो थोड़ा बहुत एड ऑन तुम्हें दे सकते हैं, बट अगेन अगर कोई पुराना टीचर रिटायर होता है तो उसका रिप्लेसमेंट के लिए हो सकता है प्रॉपरली काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है, कैन बी कंसिडर्ड, बट आई विल सी कि और कोई ऑप्शन ऐसा है क्या जो इससे बेटर सॉल्यूशन दे सकता है, ठीक है। तो लेट्स गो विद नेक्स्ट वन। बी इज don't recruit and request the existing faculty to develop complementary courses. Now if we talk about this particular option,
अगर वो पहले से अगर मान लेते कि वो केपेबल होते ही बनाने के, या उनके पास इतना टाइम या बैंडविड्थ होता, तो शायद ये दिक्कत आती ही नहीं। ठीक है, अभी हमें पता है कि दे आर डूइंग प्रीटी वेल, और फिर भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं बन पा रहा है। दैट मीन्स वी डोंट नो देयर कॉम्पिटेंसी और बैंडविड्थ और अवेलेबिलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री या डेवलप कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। तो ये प्रॉब्लम अभी तो है ही ना एग्जिस्टिंग, तो ये सॉल्व करने, ये ऑप्शन से सॉल्व तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो बी स्पॉट श्योर एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने को। फिर हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एज दे कैन टीच एनी कोर्स। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट द बेस्ट रिक्रूटमेंट डिसीजन, बिकॉज अगेन यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, यू डोंट इवन गेट, यू कांट बी इवन श्योर कि जो तुम जिसलिए हायर कर रहे हो वो चीज भी हो पा रही है, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, तो दिस इज एलिमिनेटेड। फिर है हायर ए टाइप कैंडिडेट्स अनकंडीशनली एंड अलाउ देम टू टीच कोर्सेज टॉट बाय द एग्जिस्टिंग फैकल्टी। अगेन ठीक है, बट वी आर नॉट सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग सॉल्व, क्योंकि रिटायरमेंट वाला प्रॉब्लम तो चलो सॉल्व हो रहा है इससे, ठीक, क्वालिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है इससे, लेकिन ये प्रॉब्लम कि हमारा न्यू कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज बनाने, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है इससे, तो इसको भी हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन, हायर A type candidates on a condition that they will have to develop complementary courses. Now, अब मैं लास्ट ऑप्शन को और पहले ऑप्शन को अगर कंपेयर करूं, ठीक है, तो देखो पहला वाले ऑप्शन में क्या था, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, ठीक, रिटायरमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता, शायद नहीं भी होता, क्योंकि एग्जिस्टिंग कोर्सेज को पढ़ाने के लिए वो चीज कैपेबिलिटी उनकी उतनी नहीं है। हाँ, तुम्हारा जो तुम्हारे नए कोर्सेज बनाने, वो वाला प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पे दो चीजें नहीं हो पा रही थी ए वाले ऑप्शन में। और फिर टॉक अबाउट ई वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है कि क्वालिटी तो ऑफकोर्स इंश्योर हो रहा है, रिटायरमेंट वाला प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, बट अगर तुमने उनको कंडीशन दे दिया कि उनको डेवलप करने पड़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज, तो तुम्हारा ये थर्ड वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सो वी कैन से कि ए भी एलिमिनेट करना चाहिए अपने को, एंड एज ई इज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट, तो विल गो विद ऑप्शन ई, विच इज द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, suppose the Dean Academics wanted to reduce future conflicts and political maneuvering to ensure harmony among faculty. ठीक है, which of the following options will best reduce conflicts and politicking amongst the faculty? अब यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है कि डीन एकेडमिक्स को चाहिए कि आगे चल के फ्यूचर पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिक्स ना हो, ठीक है, और ऑप्शन अभी जो मैं चूज करना है उसमें सबसे पहले ध्यान के रखना है वो ऑप्शन चूज करना है जो बेस्ट रिड्यूस करे कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक। इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप स्टेट का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम था उसको भूल जाओगे, बट मेजरली आपका जो फोकस होना चाहिए शुड बी ऑन दिस थिंग जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस पे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि हायर बी टाइप कैंडिडेट्स टू टीच कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। ओके, तो अगेन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है, अब मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम बी टाइप कैंडिडेट्स को लेते हैं, अच्छा तो पहले ये समझो एक बात कि किन किन केसेस में हमारा कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिसाइजिंग वाला केस सिचुएशन बन सकता था। वो तब बन सकता था अगर ईगो क्लैश है, या वर्क क्लैश है, या इनकॉम्पिटेंसी वाला प्रॉब्लम हो, ठीक। ईगो क्लैश तो ऑफ कोर्स तब होगा जब एकदम एक जैसे दो लोग एक दूसरे को मान लो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन है। वर्क क्लैश कब होगा, बेसिकली वर्क क्लैश तब होगा जब एक ही काम को दो लोग कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, अल्टीमेटली विच विल लीड टू ईगो क्लैश आल्सो। थर्ड इज इनकॉम्पिटेंसी, अगर एक को लग रहा है अगला काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो फिर इन दोनों के बीच में मतलब ऑफ कोर्स की बात है हार्मनी नहीं रहेगा, प्रॉब्लम करेगा। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला बोल रहा है कि हायर बी टाइप कैंडिडेट्स टू टीच कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। अब ये जो कैटेगरी है बी टाइप कैंडिडेट्स की, इन्हें पता है पहली बात कि ये एवरेज है, इन्हें पता है कि ये करंट टीचर्स जैसे नहीं है, और ये बात करंट टीचर्स जो उन्हें भी पता है। तो इन लोगों के बीच में, और हाँ क्योंकि अब इनको तुम कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज के लिए ही रख रहे हो, तो इसमें फायदा क्या है, इसमें डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होगा और थोड़ा कोलैबोरेशन में काम हो सकता है न्यू और एग्जिस्टिंग फैकल्टी मेंबर्स के बीच में, तो ये थोड़ा बैलेंस बनाता हुआ सोल्यूशन दिख रहा है। तो आई थिंक इसको हम लोग कंसिडर करके रख सकते हैं, लेट्स सी इससे कुछ बेटर मिलता है क्या। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एंड अलाउ देम टू टीच ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज। नाउ इसमें अगर हमने सी को हायर कर लिया और उनको सब पढ़ाने को दे दिया, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब वो अच्छे टीचर्स ही नहीं है, उनको सब कुछ अलाउ करने में ओवरऑल क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगा, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा तो स्टूडेंट्स के एक स्टेक होल्डर हमारे स्टूडेंट्स भी है ना, उनको गुस्सा आएगा, उनको भी प्रॉब्लम आएगा इस चीज से, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्मनी तो किसी भी हाल में नहीं बनना है। तो अगेन इस वाले ऑप्शन को तो एकदम एलिमिनेट करेंगे हम लोग, और ये इनकॉम्पिटेंसी वाली प्रॉब्लम भी लेकर के आ रहा है। सी
hire A type candidates to teach existing courses and ask existing faculty to teach new courses. Now you are directly putting ego class वाला situation here. अगर आप ये कर देते हो तो कि जो काम में वो लोग ऑलरेडी अच्छे उनको छुड़वा करके नए कैंडिडेट्स को लाके बोल रहे हो कि आप उनका काम करो और उनसे कह रहे हो कि आप ये वाला काम करो, नए कोर्सेज बनाने वाला। अगर वही वाली बात अगेन, अगर उनकी कॉम्पिटेंसी शायद होती तो वो पहले ही बना लिए होते, ठीक है, तो हो सकता है ना हो वो चीज, तो इससे भी प्रॉब्लम ही आएगी। किसी जो अपने काम में एक्सपर्ट, अगर आप उसको रिप्लेस करोगे नए लोगों से तो इट विल बी नॉट सो गुड फॉर हिम। एलिमिनेट करते हैं इसको भी। डी बोलता है हायर ए टाइप कैंडिडेट्स एंड लेट द न्यू एज वेल एज एक्जिस्टिंग फैकल्टी ऑफर सेम कोर्सेज। अगेन वर्क कॉन्फ्लिक्ट, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। जो हम लोग यहाँ बात करते हैं वर्क क्लैश होगा तो क्राइसिस होना ही है, मतलब आगे चलकर लड़ाई होनी है। लास्ट है हाई बी टाइप कैंडिडेट्स एंड आवर टू टीच ऑल काइंड्स ऑफ कोर्सेज। अब इसमें क्या प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि ये एवरेज टीचर्स हैं, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज बनाने में पढ़ाने में तो इनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सब बढ़ाने में क्या होगा, सब बढ़ाने में क्या हो जाएगा, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी और जिसकी वजह से क्लैश आएगा अगेन जो करंट एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इसमें सीधा सीधा दिख ही रहा है कि एक ही ऑप्शन है जो थोड़ा जिसमें मिनिमम डैमेज है, मतलब ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इट विल बी ऑप्शन ए, तो विल गो विद ए, ठीक है। इसी सेट का लास्ट क्वेश्चन नाउ, यहाँ पे क्या बात हो रही है, द डीन अकेडमी वांटेड टू इंश्योर द मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फैकल्टी रिसोर्सेज, which of the following hiring decisions will ensure most efficient utilization of faculty resources। ठीक है, तो most efficient utilization of faculty resources का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखो, हाँ, तो मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब जो हमारे पास हायर हो चुकी है टीम, जो हमारे पास लोग आ चुके हैं, उनमें हम किस तरीके से अपना वर्क डिवाइड करें कि सबका बेस्ट आउटपुट, सबका प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम पे निकल पाए एंड ओवरऑल सबको बेनिफिट हो। अगर हम इसमें ऑप्शन वाइज चलते हैं तो पहला ऑप्शन बोल रहा है हायर ए टाइप कैंडिडेट्स एंड लेट द न्यू एज वेल एक्जिस्टिंग फैकल्टी टीच सेम कोर्सेज। अब अगर उनको तुम हायर करके सेम चीज पढ़वा रहे हो यार, तो अगेन दिस इज बेसिकली आप दोनों का ही बेनिफिट मैक्सिमम नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, तो इसमें आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पा रहे हो प्रोडक्टिविटी का, तो इसको एलिमिनेट करेंगे हम। फिर लिखा है हायर बी टाइप कैंडिडेट्स टू टीच कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। ये ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि तुम इस समय क्या कर रहे हो कि एक्सक्लूसिवली उनको कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज के लिए हायर कर रहे हो। इससे अगेन वो रिटायरमेंट वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है सॉल्व ना हो, ठीक है, जब कोई पुराना टीचर रिटायर हो रहा हो तो। और प्लस अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ऐसे लोग हों जो कॉम्पिटेंट भी हों और ये भी कर सकें, तो इससे बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसको रोक के रखते हैं, देखते हैं इससे बेटर कुछ मिलता है कि नहीं। फिर आस्क एक्जिस्टिंग फैकल्टी टू डेवलप कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। ये तीनों क्वेश्चन में आए और तीनों जगह एजम्पशन बेस्ड है कि उन्हें आता है, हमें नहीं पता, हो सकता है अगर उन्हें आता होता तो पहले से ही वो बना रहे होते, तो ये तो कोई मतलब नहीं है और इसका मतलब आपने हायर भी नहीं किया है। और यहाँ पे मतलब मैक्सिमम एफिशिएंट रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो वो तो पहले भी नहीं हो रहा था और ये हायरिंग डिसीजन है, तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। फिर है हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एंड असाइन देम टीचिंग असिस्टेंट रिस्पांसिबिलिटीज। बिल्कुल वेग है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। प्रॉब्लम आपका क्वालिटी इंश्योर करना था, प्रॉब्लम आपका न्यू कोर्सेज ऐड करना था, प्रॉब्लम आपका ये करना था कि अगर कोई पुराना टीचर रिटायर हो रहा है तो उसकी जगह हम सही रिप्लेसमेंट ला पाए। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आई गेस इस वाले ऑप्शन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लास्ट ऑप्शन है हायर ए टाइप कैंडिडेट्स केपेबल ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। नाउ अगेन बी और ई के बीच की फाइट अगर देखी जाए, जस्ट लाइक पहला वाला क्वेश्चन, बी में क्या है, तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए ला रहे हो जो कि एवरेज है। ए में अच्छे स्किल सेट के लोग हैं और पर्टिकुलर नहीं है, और ये अगर केपेबल है दूसरा वाला काम, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज बनाने के लिए, तो एनी टाइम आई विल चूज ए ओवर बी, ठीक है। तो इस केस में अगेन मैं आई विल एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड विल गो विद ऑप्शन ई, ठीक है। तो अभी देखो ये पूरा सेट था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिलेमा वाला सिचुएशन नहीं था, ये मोर और लेस लॉजिक बेस्ड सेट था। न्यूमेरिकल डेटा तो नहीं था इसमें कुछ भी, बट ये मतलब ये मैनेजेबल बोल सकते हो इसको, सिचुएशन वाला सेट था। अभी एथिकल डायलेमा होता है, ऐसा कुछ सोचने वाला चीज होता तो प्रॉब्लम कर सकता था। ये सेट बहुत सिंपल, मतलब आप ब्लैक एंड व्हाइट में चल सकते हो मोर और लेस। ऑप्शंस कुछ कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं, लगेंगे, जैसे अभी हम लोग बी और ई में डिसाइड नहीं कर पा रहे। ऐसे केस में हमेशा स्टेक होल्डर्स को एस्टैब्लिश करके, मतलब लिख करके, उसके बाद फिर देखो कि क्या क्या चीजें, जैसे अभी हमने पहले लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, किस वाले से कम प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच लेके चलोगे तो चांसेस है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आई गेस आज के लिए, मतलब फर्स्ट वीडियो के लिए इतना काफी है। अब आगे कुछ डिस्कशन नहीं है, बट आगे सीधे सेट्स सॉल्व ही करने हैं अपने को। तो इन कमिंग वीडियोस विल बी टेकिंग अ कपल ऑफ सेट्स वन बाय वन। तो एक बार में दो सेट या एक सेट जितना भी हो पाएगा
तो सॉल्व करते हैं। आई विल बी टेकिंग ओनली पास्ट ईयर क्वेश्चंस बिकॉज खुद से बनाए हुए सवाल उनके लेवल से बिल्कुल बहुत दूर होते हैं। तो सम ट्रिकी या अच्छे क्वेश्चंस ऑफ 2023, 2022, 2021 ऐसा करके देखते हैं, ठीक है। और बाकी किसी को कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में या कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और इनफैक्ट अगर पर्सनली रीच आउट करना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट थ्रू आवर इंस्टा हैंडल, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, एंड लेट्स मीट सून, टेक केयर।